सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे, नमस्तं सो एक नमस्तं अनेक, नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे, नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भरमे, नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे, नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे, नमस्तं निर्ताते नमस्तं निर्काते, नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे, नमस्तं निर्ताते नमस्तं निर्काते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर दीन अते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभायमान हल्त पलत के रखयक उधार चित सारियां नूं सुख देण वाले दुखां दा नाश करन वाले हाजर हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिबां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आपां सारे ही अमृत वेले दे दीवाना गुरु गोदी दा आनंद माण रहे हां। वडभागे हो सतगुरां दी पावन हजूरी दे अंदर बैठ के रब्बी गुरबाणी दे कीर्तन सुने। उस तो बाद साडे नितनेम दी बाणी धन 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 साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दे पावन पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण की हुई बाणी श्री जाप साहब जी दी विचार करन दा सुभाग समा भी आपां सारिआं नूं प्राप्त होया। आओ इस मिले हुए समय नूं गुरु की बात पा के इन्हां पाक पवित्र वचनां दी विचार करके सतगुरां दे उपदेश नूं भी सुनना मनना ते कमाउणा है और इस कदर बैठना कि साडा इत्थे बैठिया होया सफल होवे, साडा जीवन सफल होवे। कल बचन आए सन नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे, नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे। मैं सिर्फ कोई 5-4 मिनट नमस्तं उदारे इहदे बारे च विचार करके जो अगले 3 छंत ने आपां उन्हां दी विचार करनी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कहंदे परमात्मा मैं तैनूं नमस्कार करदा क्योंकि तुसी उदार चित हो, खुले दिल वाले हो।
ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਇਆਲਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਗਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਕਦੇ ਖੰਡ, ਕਦੇ ਗੁੜ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੱਕਰ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਛਕੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰੀਦ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰਾਂ, ਖੰਡ, ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
परमात्मा इस तरह कृपा करता, फिर तेरे अंदरों चश्मा फुट। बाबा जदों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कोलों भाई नंद लाल जी आए, जदों वो उदार चित्त वाला दिंदा है, उदों की हुंदा है? वो सब नूं दे रहा है। भाई नंद लाल साहब ने कई दिन वेख्या भी लोग बड़ी दूरों दूरों आउंदे आ, जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब पुछदे आ दसो की चाहीदा, सारे इक्को ही गल कहंदे आ, सिੱਖੀ दे दिओ। मैं कोल बैठ के भी वेख लिया, मैं दूरों खड़ के भी वेख लिया, मैं हर एक दी आवाज़ भी ध्यान नाल सुनदा। जदों कलगीधर खुश होके कहंदे आ, दस भाई काबल तो आया है, पेशावर तो आया है, ਇੰਨੀ दूर तो तू आया, कोई लाहौर तो आउंदा है, कोई दिल्ली तो आउंदा, दसता सी की चाहीदा, इक्को ही गल सिੱਖੀ चाहीदी है। भाई नंद लाल साहब ने सोचा सिੱਖੀ है की? अच्छा दिंदे भी देखिया नहीं जा रहा भी सिੱਖੀ दे इवज विच कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई सुगात दित्ती होवे। हुण सिੱਖੀ की है? सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुरु विचार, गुरु उपदेश दिंदा है, गुरु सिੱਖਿਆ दिंदा है, गुरु अपना सुभाव दिंदा है, अपने गुण दिंदा। यही सिੱਖੀ है। जदों गुरु की सिੱਖਿਆ मन विच जा वसे, वो सिੱਖਿਆ साडे अंदरों झलकण लग पवे ते वो सिੱਖ है। गुरु उपदेश दिंदा है, जदों साडे मन च वस गया, उस उपदेश मुताबिक जीवन हो गया, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे वाली अवस्था हो गई। फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे, नाम जपना, ध्यान लाउणा, सिमरन, बंदगी, सेवा, जदों ये सारे गुण, एक दयालता, प्रेम, निमरता, धीरज, इहो जे जदों गुण प्रगट हुंदे आ तां उदों समझ आउंदा भी इहदे अंदर सिੱਖੀ है, गुरु की दात है, वो प्रगट गुणा राही हुंदी है। भाई नंद लाल साहब ने एक दिन जाके गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कहा कि मैनूं भी कुछ दे दिओ। पातशाह कहंदे तैनूं की चाहीदा? कहंदा जी ये सारे सिੱਖੀ मंगदे आ, मैनूं भी सिੱਖੀ दे दो। जिन्हों मैं वेखदा कोई दूजी दात ही नहीं मंग रहा, तेरे तो सारे सिੱਖੀ मंग रहा। हुण आपां इन्ने बैठे आ, लाइव सुन रहे आ, अपने मन विच झात मार के जरूर अपने अंदर नूं पड़चोलिओ भी आपां सिੱਖੀ दी दात कदे मंगी जां नहीं? जे मंगी तां किन्ने क वार मंगी? किते ऐसा तां नहीं भी असीं ये सिੱਖੀ ते सारियां गल्लां छड्ड के दुनियावी चीज़ां ही मंग रहे हां? कदे इह स्वै पड़चोल करिओ। एक पंथक अरदास विच तां असीं रोज़ कहने सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ दान बख्शो। मेरे ख्याल इसे करके कहना पै रहा कि सिੱਖੀ दान घट मंग रहे आ। परिवार दियां अज तां जिन्नियां अरदासां हो रही उहदे च मेरे ख्याल 99% ही अरदासां कि बच्चे दा आईलैट्स वधिया हो जाए, इहदा वीज़ा जल्दी आ जाए, इहदी PR हो जाए, इहनूं बाहर काम मिल जाए। दास नूं भी बड़े टैलीफोन आउंदे आ, बड़े मिलदे आ, आही फोन ने सर, ਉਹਦੇ बैंड नहीं पूरे आ रहे। साडे देश विच इक्को ही टैसट सब तो महत्वपूर्ण रह गया आईलैट्स का। IAS IPS इंजीनियर PhDयां सब कुछ छड्ड दित्तियां, एक टैसट के आले दुआले घूम गए, जिहदे ते ਲੱਖਾਂ रुपया ला के फिर बाहर जांदा। बड़े नाल धोखा धड़ियां भी हुंदियां ने, पर वो परमात्मा की विशालता, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਅੱਜ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੁਣ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ। परमात्मा भी किसी नाल फर्क नहीं रखता, गुरु ग्रंथ साहब भी किसी नाल फर्क नहीं रखते। परमात्मा का घेरा दायरा किड्डा विशाल। हुण मींह पै रहा, कोई रब ने शर्त नहीं रखी हुई भी मैं फलाने फलाने के घर च ही मींह पाउणा, फलाने दे नहीं पाउणा, फलाने शहर च पाउणा, फलाने धर्म वालियां दे पाउणा, बाकियां नूं मैं सुक्का ही रखना। कोई वितकरा नहीं है, आकाश का कोई वितकरा नहीं, हवा ना कोई वितकरा नहीं, सूरज का कोई वितकरा नहीं, धरती कोई वितकरा नहीं करती, क्योंकि सब कुछ रब ने बनाया। रब किसी नाल भेदभाव नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहब उसे रब का सरगुण स्वरूप है। गुरु ग्रंथ साहब भी किसी नाल भेदभाव नहीं करते। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को संझा। होर धर्मां दे लोग आके बैठ जाण ते कदे ग्रंथी सिंह ने कहा कि भाई जे कल्ले सिख होणगे मैं तां हुक्मनामा सुणाउणा। कथा करन वालियां ने क्या होवे जी कल्ले सिख बैठे होण असीं तां ही कथा सुणावांगे, तां ही कीर्तन सुणावांगे। इत्थे तां होर धर्मां दे भी आके बैठ गए। पातशाह कहते नहीं, कोई गावे को सुने। इत्थे कोई भी आके गा ले, कोई भी आके सुन ले, क्योंकि रब का सरगुण स्वरूप है। जिवें रब ते रब की कुदरत वितकरा नहीं करती, ते रब का सरगुण स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब भी किसी नाल वितकरा नहीं करते।
ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਵੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾ ਗਏ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ 100% ਹੀ ਕਰੇ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 100% ਹੀ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ 100% ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਣ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਪੱਤਣ ਚੱਟ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ, ਦੇਖੋ ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਨੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਉਧਰ ਵੀ 100% ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਹੌਲ ਕੁਬਤਿੱਲਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 1400 ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ 1400 ਵਿਦਵਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋੜੇ ਝਾੜੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦੀ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ गाहे दीनो दुनिया दर कमंद, आ परी रुखसार मां हर दो आलम कीमते यक तार मुए यार मां। अज अंदर ले ज्ञान कह रहा नंद लाल, तेरे गुरु की कोई कीमत नहीं चुका सकता। दोवें लोक ते परलोक कट्ठे होके भी गुरु गोबिंद सिंह की कीमत नहीं दे सकते।
ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗਾਹੇ ਕਲੰਦਰ ਮੇਸ਼ਵਦ ਰੰਗ ਹਾਏ ਮੁਖਤਲਫ ਦਾਰਦ ਬੁੱਤ ਅਯਾਰਮਾ। ਕਿਧਰੇ ਸੂਫੀ ਕਿਤੇ ਕਲੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕਿਤੇ ਕਹਾਵੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਸਈਓ। ਪਲ ਪਲ ਰੂਪ ਵਟਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਸਿੱਟਦਾ, ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਟਦਾ ਹੀ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਗ ਫਾਰਸੀ ਚ ਕੁੱਤਾ ਅਰਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਕੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ। ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੰਜੂਸ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਸਾ ਬਿਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੌਦ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜੂਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤਾ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕੱਢਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ, ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾ ਰੱਬਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਜਾ ਖੁੱਲਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ $100 ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 100 ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ 50 ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ 100 ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ 50 ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ 50 ਕਦੇ ਲਈ ਦੇਣੇ ਆ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 100 ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ 50 ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜੂਸਪਣਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਜੂਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਉਸ ਆਮ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ,
पातशाह कहते मैं दावे नाल कहना वो संगत की सेवा विच लग जाए, वो परमात्मा की सेवा च लग जाए, वो लोड़वंद मनुखता की सेवा विच लग जाए, किसी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान वाले अस्थान शहीद सिंघां दे अस्थान की सेवा ते लग जाए, जिन्हों लगदा अज मेरे कोले कुछ नहीं, देखदियां अरबां खरबां दे मालक बन जाते हैं। क्योंकि उदार चित्त गए इत्थे भाग बनते आ। तां ही मैं रोज़ बेनती करदा संगत विच बैठिया करो, इत्थे साडे माड़े कर्म कट्टे जाते आ, चंगे भाग बन रहे आ। इत्थे बैठ के साडी तुहाडी गुरु नाल नेड़ता हुंदी है। तो सतगुरु पातशाह ने महान बख्शिशां कीतियां ने। वो परमात्मा जिहड़ा है भाई वो उदार चित्त गए, वो उदार एक खुले दिल नाल देण वाला है दाता। पर इहो जे खुले दिल वाले परमात्मा तो कदे अरदास करके उस नूं भी मंग लिओ, उस परमात्मा नूं भी मंग लिओ। क्योंकि जिन्हां ने मंगिया और रब मैं इन्ना उदार चित्त है, वो ये नहीं सोचता भी मैनू भगत रविदास बुला रहा, वो तो मोए हुए पशुओं नूं ढोंदा है, वो तो चमड़े के जोड़े बनाउंदा, मैं उत्थे जाके किवें बैठांगा, मोए हुए पशुओं की मुश्क आउंदी होएगी। रब ये नहीं सोचता। वो कहना बुलाया किस भावना नाल है, मैं उस भावना के मद्देनज़र जाना है। वो ये नहीं वेखदा भी कबीर साहब तो इत्थे खड्डियां दे विच उलझिया पिया, इत्थे तां ताणा पेटे का काम बड़ा चल रहा है, इत्थे तां सूत बुन बनाउण दा काम बड़ा चल रहा, ते मैं उहो जिहियां खड्डियां कोल जाके किवें बैठा। रब ये नहीं वेखदा, रब ये नहीं वेखदा नामदेव दी छपरी टुटी पई है, वो मींह दे विच चौंदी है, इन्ने लोग आउंदे जांदे आ, कपड़ियां नाल भरिया पिया, मैं उत्थे क्यों जाना है। रब ये नहीं वेखदा क्योंकि उदार चित्त है। भगत धन्ने नूं नहीं वेखदा भी वो तो खेतों में ही हल पाउंदा, 24 घंटे खेतों च काम करदा है, कित्थे बिठाएगा कित्थे खड़ाएगा की छकाएगा, कहंदा सद्दिया ते मैं जाना। हाँ उन्हां कोल गए तां परमात्मा दर्शन तां दिंदा है, पहुँचदा तां जे कोई आवाज़ मारे। सदने कसाई ने बुलाया, सैन नाई ने बुलाया, कबीर साहब ने बुलाया, रविदास जी ने बुलाया, जिन्हें बुलाया वो गया। जे सानू लगदा भी साडे कोले क्यों नहीं आउंदा, कदे सोच के वेखियो आपां बुलाया किन्ने बार है। असी तो कदे उदास बैठे होईए नाल दी नाल फोन मारी दिया भी फलाना सिया आके जा, मन नहीं लगता कल्ला ही बैठा, मेरा तो समा ही नहीं, अज दिन ही नहीं लंघ रहा। जेड़े नशियां दा सेवन करने वाले ओह जी सोसाइटी नूं फोन करके साधिया, जेड़े निंदिया चुगली विच रस जिन्होंने आउंदा ओह जे लोगों नूं फोन करके साधिया। कदे कल्ले बैठे ने उदास मन जे किते हो भी गया, कदे इदां बैठ के रब नूं आवाज़ मारी के परमात्मा अज बिल्कुल कल्ला बैठा, मेरा मन नहीं लगता, अज तुसीं आओ मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां करनियां चाहुंदा, अज तुहाडे नाल मैं कुछ समा कुछ लम्हे कुछ पल बिताउणे चाहुंदा है। अपने मन च जरूर झात मारियो भी आपां किन्ने वार उहनूं सद्दा दिता, कदे गुरु नूं इवें सद्दा दिता होवे भी साडा अज मन नहीं लग रहा, अज तुसीं आओ असीं तुहाडे कोल बैठना है, साडे कोल बैठो, साडा अज चित नहीं लग रहा, अज मन ठीक नहीं। असीं तो इत्थे आले दुआले वेखदे हां भी कौन मेरा मन लवाएगा, किहड़ी गल नाल मेरा मन लगना है। चलो जे बुलाउणा नहीं आप गुरु कोल आ जाओ, जे तुहानूं लगदा भी पता नहीं आवेगा कि नहीं आवेगा, आप तो आ ही सकदे ना, आप आके गुरु कोल बैठो, सेवा करो, सिमरन करो, गुरुमुखां दी संगत करो, इहदे नाल सतगुरु कृपा करनगे। तो क्योंकि उदार चित्त है भाई, जदों उहनूं कोई आवाज़ां मारे दिन रात, केसो केसो कूकीए ना सोईए आसार, रात दिवस कै कुकने कबू कै सुनै पुकार। वो कदे दा पुकार सुनदा है और पुकार सुन के वो आउंदा है, फिर नहीं वो वेखदा भी इहदे घर च शराब बहुत सी, इहदे घर मास बड़ा रन्निया गया है, इन्हें तो पाप बड़े कीते आ, पर उन्होंने पता भी अज मैनू बुलाया, हुण मैं आ गया, हुण मैं पाप रहन कोई नहीं देना, हुण मैं औगण रहन कोई नहीं देना, हुण इन्हें मैनू बुलाया, मैं इहो जिहा इहदे नाल रिश्ता जोड़ लेना जेड़े रिश्ते च कदे तरेड़ पएगी नहीं। मैं किसे गुरमुख दे बचन सुन रहा सी, उन्होंने कहा कि आम दरियावां दे भी दो किनारे आ, नहरां दे भी दो किनारे आ, हर एक चीज़ दे दो किनारे दो कंढे हुंदे आ, रब दा इक्को ही किनारा है, सिर्फ वो जान दा किनारा है, जान दा रस्ता है, जेड़ा एक बार ज्ञान ध्यान दे राही परमात्मा कोल पहुँच गया, ध्यान ला ला, सुरती जोड़ जोड़, मैडिटेशन कर कर, कोशिशां कर कर, सेवा कर कर, जेड़ा उत्थे पहुँच गया परमात्मा तक चलिया गया, फिर उतों वापस मुड़न का रस्ता कोई नहीं है, वो मुड़न भी नहीं दिंदा। क्योंकि
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨ ਦੇਗਾ? ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਚ ਆ ਸਕੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। तो अगले बचन ने महाराज साहब दे नमस्तंग सो एक है, परमात्मा तेनू नमस्कार है क्योंकि तू आप ही आप है, कोई तेरे आले दुआले दूजा तीजा नहीं। तू सर्वशक्तिमान है, तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कल भी बचन आए सी, तू निर्भौ ते निर्वैर इसे करके क्योंकि तेरे बराबर कोई नहीं है। ते एक बचन शायद तुहानू याद होवे, गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर है, साहिब मेरा एको है भाई एको है। परमात्मा साडा एको ही है, एक वर्गा दूजा कोई होर नहीं है। गुरबाणी दा पाठ एक तो शुरू हुंदा है, पर गिणती दा एका पाया धन गुरु नानक साहब ने। क्योंकि जे ईड़ी नूं सिहारी कक्का एक हुंदा ना तां विआह करन वालियां ने कोई ना कोई अर्थ होर बना देने सी। गिणती दा एका पाया कि भाई असी उस एक नाल जुड़ना है, सारा पसारा उस एक दा ही है। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए, यही उस रब दा सब तो वड्डा गुण है कि ओदे वर्गा कोई होर नहीं है। अपने आप तो आप ही है, वो एक परमेश्वर है। पहला एक गल पक्की कर, रब एक है जिदे वर्गा कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी गल याद रखियो, नमस्तंग सो एक है, रब एक का ना। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह नूं गुरसिखां ने वधाइयां दित्तियां, कहंदे महाराज तुहाडा खालसा पंथ बड़ा चढ़दी कला है, तुसीं खालसा साजिया। महाराज कहंदे खालसा मेरा नहीं, ये वाहिगुरु जी का खालसा, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा दा प्रगट है। खालसा परमात्मा की मौज, ये परमात्मा दी मौज विच पैदा होया। सतगुरु खालसे दे गुण की ने? कहते गुण तो बहुत ने, है ही गुणों का खजाना, पर एक सब तो वड्डा विलखण गुण इहदे विच पता की है? मैं इस खालसे नूं उस एक परमात्मा नाल सीधा जोड़ दिता। मैं इहनूं खास हदायत करके कह दिता, जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन, नैक न आनै पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी, मठ भूल न मानै। ये खालसे का सब तो वड्डा गुण यह है कि मैं खालसे नूं रब नाल जोड़ दिता है। और मैं भी बेनती करा, परमात्मा नाल चलो जोड़िया, हुण तुसीं पुछोगे किवें जुड़िए? परमात्मा नाल जुड़िया जाना शब्द दे राही। शब्द की है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी। ये साडा शब्द, बाणी ही गुरु है। वाह वाह, बाणी निरंकार है। इस शब्द राही तुसीं परमात्मा तक जाना, यही रास्ता है, होर कोई नहीं। महाराज कहते मैं खालसे च तीन गुण, तीन गल्लां कईयां। एक उन्हां गुरमुखां दी संगत करनी है जिन्हां गुरु नानक साहब ने कहा सी, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राय। मैनू संगत ते बाणी बिना कोई दूसरा आसरा नहीं है। उन्हां गुरमुखां दी संगत कर जिहड़े आप जुड़े हुए ने, आप जपै अवरा नाम जपावै। उन्हां गुरमुखां दी संगत कर जिहड़े आप जुड़े, तैनू भी जोड़ देण। तैनू 3 फेस बनाया सिख नूं। अज सिंगल फेस तो बड़े ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, कोई सेवा कर रहा है, कोई कल्ला सिमरन कर रहा, कोई चंगियां गल्लां ने, माड़ी नहीं। पर कोई चीज़ जदों हदों वध हो जाए ना, वो कई बार इंसान उहदे गलत फायदे लैण लग पैंदा है, जां मन कई बार गलत पासे नूं तुर पैंदा है। हर चीज़ लिमिट विच, हर चीज़ गुरु दे हुक्म विच होनी चाहिदी है। और सेवा ते सिमरन ये बैलेंस रखदे आ। सिमरन करन वाले, बहुती बाणी पढ़न वाले, आपां नूं लगदा जी बड़ा गुरमुख है, बड़ी परमात्मा दी, के घरदिआं नूं पुछो कहंदे जी तां नेड़े नहीं लगण दिंदा किसे नूं। सानूं लगदा है बाणी बहुत पढ़दा, पर अंदरों अग निकल रही है। अंतर अगन बाहर तन सुआ। जदों बोलदे आ क्रोध वाले बचन आउंदे आ, जदों बोलदे आ किसे नूं निराश करने वाले बचन निकलदे आ। इन्नी बाणी पढ़न वाला जदों बोले, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ बचन होण इन्ने रस नाल भरे, इन्ने मिठ बोलड़े बचन होण, किसी होर धर्म का बंदा भी सुने, ਉਹਦਾ भी चित्त करे मैं सिੱਖੀ अपनावां ते परमात्मा नाल जुड़ां। क्योंकि एक रास्ते ते चलदे चलदे मन हंकारी हो गया। भजन बंदगी का हंकार भी हो जाता है, कल्ली सेवा का हंकार भी हो जाता है। सेवा ते सिमरन, सेवा साडे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रियां नूं साफ ते निर्मल पवित्र करदी है। जिहड़ा सिमरन है, ये साडे मन की जन्म जन्म की मैल नूं कटदा है। सिमरन करके, सेवा करके मन च निमरता आवे।
सेवा ते सिमरन मन विच प्रेम पैदा करते आ। प्रेम आना चाहिए। जे असी बाणी भी पढ़ रहे हैं, प्रेम नहीं आ रहा, निमरता नहीं आ रही, हंकार वधदा जा रहा, क्रोध वधदा जा रहा, वासनावां वधदियां जा रही, फिर कोई की कहेगा? फिर आ जाप साहब की बाणी ताई महाराज ने नितनेम च रखी है। फिर ये बाणी का पाठ कर, जाप कर, तेनू सतगुरु दसणगे भाई नमस्तंग सो एक है, मैं तेनू परमात्मा नाल जोड़िया। परमात्मा एक है, खालसा परमात्मा का पुजारी है, अकाल का पुजारी है। एक नाल जुड़, गुरु नाल, गुरु राही जुड़ेगा। और गुरु निमरता का मुजस्म है, गुरु शांति का मुजस्म है। गुरु साहब ने तो गल ही इत्थों शुरू की थी, जो तो प्रेम खेलन का चाहो। तो प्रेम के पाठ पढ़ाए जाते हैं। जेड़ा गुरु नानक साहब ने प्रेम का बचन किया, उसे नूं तस्दीक गुरु गोबिंद सिंह कर रहे हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अज प्रेम कित्थे है? अज सिख सिख नाल लड़ रहा है, आपस में नफरत, आपस में एक दूजे दीयां पग्गां लाइयां जा रही, आपस में एक दूजे नूं गाली गलोच। गुरु घर अंदर, दरबार साहब के अंदर भी कई बार इदां दे माहौल बन जाते हैं। मैं कई बार सोचदा, जेड़ा पग ला रहा वह भी सिख, जिहदी लह रही है वह भी सिख, जेड़ा लहा रहा वह भी सिख। तो सारी अरदास ये करदा, गुरु गोबिंद सिंह साडी रखिया करी। अज कुछ भी हो सकता है। हुण गुरु गोबिंद सिंह सोचते तो होणगे, हुण पग लहाउण वाले दी रखिया करा, जेड़ा लहा रहा ओदी, जिहड़ी लह रही आ ओदी, जां जेड़ा ला रहा किहदी रखिया कर? तिन्ने ही मेरे ने। पर लहाउण ते लाउण वालियां ने सोचिया नहीं भी ये पग कोई 5-7 मीटर कपड़ा नहीं, ये पग धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की बख्शिश है। ये पग विचों गुरु गोबिंद सिंह नजर आता है। जनरल जगजीत सिंह अरोड़े नूं पुछो, ये पग की महानता की है। 1971 की लड़ाई हुई ते फौज जितदी है। कुछ जिहड़ियां बच्चियां वो दुश्मन के पंजे विच आईयां, मोर्चे च आईयां। तो दुश्मन का यह पहला ही हुंदा, जदों किसी की इज्जत हथ विच आवे, वो इज्जत नूं उछालण का यतन करदा है कि इज्जत नूं तारो तार करदा। साडे बच्चे, साडी बिरध माता दुश्मनां दे हथ च आई, उन्होंने शहादत दे दिती और उन्होंने किहो जो पाप कमा गए। पर एक वक्त आया जदों बाबा दीप सिंह साहब हुणां ने श्री हरमंदर साहब की बेअदबी का बदला लिया। जहान खान मारिया गया। जहान खान का परिवार, ओदी बेगम, ओदे बच्चे सिखां दे हथ लग गए। किरदार वेखो की है, सिख का किरदार वेखो की है, हरी सिंह नलूए वर्गियां दा किरदार वेखो। एवें थोड़ी अफगानियां दे मुंह तोड़ के रख दिते। 12 मीटर का रास्ता जिहड़ा मुद्दतां तो किसी तो बंद नहीं सी होया, हरी सिंह नलूए ने करिया सी। किरदार खड़ा सी पिछे, जीवन खड़ा सी पिछे। खालसे दे गुण सन, जिहड़े गुण गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भरे। सिखां, जस्सा सिंह आलूवालिया ते होर सिखां ने फैसला किया, बेशक दुश्मन दे बच्चे, दुश्मन साडा मारिया गया, पर ये बच्चे ओदी औरत नाल किसी तरह की वधीकी ने। इन्हों पुछो कित्थे जाना चाहुंदे आ, बा इज्जत इन्हों छड्ड के आओ। उन्होंने कहा कश्मीर जाना, कश्मीर छड्ड के आए। ये साडा करैक्टर, ये साडा किरदार है। जगजीत सिंह अरोड़े जदों बच्चियां निर्वस्त्र कीतियां दुश्मन ने, कुछ बच्चियां मोर्चे चों बाहर निकलियां, उन्होंने क्या बाहर आ जाओ, कहदियां साडे तन ते बस्तर नहीं रहे, असीं किवें बाहर आईए। अज फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब की दिती हुई दात, जगजीत सिंह अरोड़ा कहता मैनू अज एहसास होया कि कलगीधर पातशाह तू दस्तार सजाउण लई क्यों किया, तू दस्तार नूं इन्ना प्यार क्यों करदा है, तू दस्तार सिख दी आन बान शान क्यों किया, तू दस्तार नूं एडी महत्ता क्यों दिती। जगजीत सिंह अरोड़ा कहता अज पता लग्या दस्तार ये 7 मीटर 8 मीटर का कपड़ा नहीं, ते लोड़ पैण ते पड़दे भी कजदी है। दस्तार अपनी लाई ते दस्तार दे टुकड़े करके उन्हां बच्चियां नूं सिट्टे, उन्हां वाल सिट्टे गए, वो अपना तन कज के बाहर आईयां। जगजीत सिंह अरोड़े दे अखां च पानी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दा शुकराना सी। ये ओदियां दातां ने, उस उदार चित गुरु दियां दातां, उस उदार चित परमात्मा। ये दस्तार रब भी बंद है, खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल भगत नाम दे संग, रब्बा तेरी पग बड़ी सोहनी है, तेरे बोल बड़े मिठे आ। ये ओदियां दातां तो सतगुरु कहते नमस्तंग सो एक है। खालसे नूं भाई उस परमात्मा नाल जोड़िया, एक नाल जोड़िया जिहड़ा एक अपने आप तो एक है, अपने आप तो प्रकाशवान है, अपने आप तो सहपंग, जिन्हों किसी ने थापिया नहीं, किसी तो जन्म नहीं, किसी ने पैदा नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने उहदा मॉडल नहीं तैयार किया, अपने आप तो वह परमात्मा आप है, उहदा आकार कोई नहीं है।
उस एक परमात्मा नाल गुरसिखो आपां सारिआं नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जोड़िया। जुड़ना धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे राही है। और आ जिहड़ी संगत विच आपां रोज़ बैठदे हां, ये संगत दा गुण, इहदी व्याख्या जिन्नी हो जाए उन्नी थोड़ी है। शायद आपां बैठण वालिआं नूं भी ना पता होवे कि इस संगत विच बैठ के सानूं की लाभ मिल रहे आ, की बख्शिशां मिल रही ने, शायद सानूं भी ना पता। पहली गल तां है कि असीं धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे आमो सामने बैठे हाँ। जे असीं गुरु साहब के दर्शन कर रहे हैं, सतगुरु सानूं भी तो देख रहे आ। पता नहीं किहड़े वेले वो सवली नदर, नदरी नानक नदरी नदर, निहाल वाली नदर पै जानी आ, ते जिस नदर ने साडे जन्मां जन्मां दे पाप कट के उस परमात्मा नाल मिला देना है। की पता पल कदों आना है, पता नहीं वो लम्हे कदों आ जाने, जदों साडा तुहाडा गुरु परमात्मा नाल मिलाप हो जाना है। महाराज साहब कहंदे आ परमात्मा एक है, नमस्तंग सो एक है, मैं तेनों एक नूं नमस्कार करदा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे नमस्तंग अनेक है। वो जिहड़ा परमात्मा है भाई आप एक है, ते आ सारा पसारा उसे दा ही है, एक तो ही सारा पसारा। कोई ये नहीं है चलो कईयां दा मत ये कहंदा फलाना बना रहा, फलाना चला रहा, फलाना खत्म कर रहा, पर गुरमत कहंदी है नहीं, करे करावे आपे आप, सब कुछ वो आप ही कर रहा। पैदा भी वही करदा है, प्रतिपालना भी वही करदा है, ते जदों दुनिया तो जाण दी वारी आउणी है सदा भी उसे दा ही आउंदा है। इत्थे किसी नूं डिपार्टमेंट नहीं वंडे हुए, वो सारियां जगह ते आप वरत रहा है। फिर वो आप ही अनेकता च है, सारे शरीर अपना उहदा कोई शरीर नहीं है, सारे शरीर उसे दे है, सारे शरीरां विच आप वस रहा है। एक तो अनेकता है। और फिर भी ये गल याद रखियो, अनेकता कई बार मिटी, परलों आई, जल थल होया, फिर दुनिया बन गई, कदे ढह गई। जदों विश्व युद्ध लगदे आ किन्ने लोग करोड़ां अरबां की गिणती च मरदे आ, दोबारा फिर वसों हो जाती है। ये परमात्मा अनेकता, कदे एक कदे अनेक कदे एक, और वो अनेकता विच एक है, एक है, अनेक है, फिर एक है। अनेकता तो बाद फिर वो एक है। अनेकता दा कदे ना कदे मिट सकती है, खत्म हो सकती है, पर इस अनेकता नूं बनाउण वाले एक ने कदे नहीं मिटना, उन्हें कदे खत्म नहीं होना। सतगुरु कहते कभी भी नहीं मिटता। जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखै वेख अकेला, वो सारे पासे बैठा आप ही वेख रहा, सारे अडंबर पसारे नूं सारियां च वरत रहा है। कदे इत्थे लोग आ रहे, दुनिया तो जा रहा, वो नहीं मिटदा। वो एक शांत रस होके एक आनंद स्वरूप विच बैठा होया। लखां करोड़ां अरबां जेड़े आ उस परमात्मा ने घड़े जेड़े तुसीं आम रखदे हो ना, पानी दे भर के रख दो, लखां घड़े भर के रखो, चंद्रमा का प्रतिबिंब सारियां विच है। अज परमात्मा ने 800 करोड़ के करीब दुनिया बनाई, इस तो इलावा किन्ने जीव जंतु सारियां विच उहदा प्रतिबिंब है। सारियां विचों परमात्मा रमिया होया, समाया होया, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई। वो एक अनेकता विच रमिया होया, अनेकता विच सर्व व्यापक होकर वरत रहा परमात्मा। अदृष्ट शक्ति है वो, जिहड़ी है तो है, महसूस होंदी है पर नज़र नहीं आ रही। बड़ियां चीज़ां हो जिहड़ियां है ने पर नज़र नहीं आ रही। माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। वाहिगुरु अनेकता विच भी है, एक मूर्त अनेक, दर्शन कीन रूप अनेक। वो आप ही सूक्ष्म है, आप ही स्थूल है, ओदी लीला भी बड़ी न्यारी है। ये जिहड़ी सतगुरां दे बचन ने, आपे सूक्ष्म आपे स्थूला, लकी ना जाई और नानक लीला समझ ही नहीं आ सकता। तां पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे ऐसे परमात्मा मैं तैनूं मत्था टेकदा, जिहड़ा आप एक है, अनेकता विच भी वो एक है। अनेक है फिर एक है, अनेकता तो बाद भी वो रह जाता, अनेकता कई बार खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं तेनों नमस्कार करदा है। एक रूप जाके रंग अनेक, सुखमनी साहब अनेकता विच भी तू एक है, मैं तेनों प्रणाम करदा। नमस्तंग अभूते, सतगुरु कह रहे परमात्मा जिहड़ा है, भूत का अर्थ हुंदा तत्त। आम सारी सृष्टि जिहड़ी आ 5 तत्तां दी बनी है। 5 तत्तां तो ये परमात्मा ने 5 तत्त को तन रचियो। साडा शरीर 5 तत्तां दा, 5 तत्त कर तुद श्रेष्ठ सब साझी। गुरु अर्जन साहब कहने आ 5 तत्तां दी सारी सृष्टि उस रब ने साज दी। जेड़े तर्क करदे भी रब है नहीं, जे है तो दिखाओ,
उन्हां लोगां नूं क्या करो, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। जेड़े कहंदे आ रब नहीं, रब ने तां पंज तत्तां दी सृष्टि बनाई, तुसीं जे तुहाडे कोल कोई ताकत आ छेवां तत्त इहदे च पा के विखाओ। कोई छेवीं चीज़ नवीं पै जो तुसीं दिखा रहे हो दुनिया ने, तां रब कुदरत रब ने बनाई आ, उस कुदरत की खोज करके दुनिया सामने रख रहे हो। अपने कोलों की बनाया? कुछ भी नहीं है। हवा पानी अग मिट्टी आकाश, ये तो ये शरीर जिहड़ा साडा सिरजिया गया, पर रब अपूते वो पंज तत्तां दी बनतर विच नहीं आउंदा। परमात्मा नूं ये पंज तत्तां दी सृष्टि विच नहीं, अनभूत अंग आबा अभंग, वो जिहड़ा आबा दा अर्थ हुंदा फब्बत, अभंग एक रस, ओदी फब्बत सदा लई रहिंदी आ, क्योंकि वो ना कदे बचपन, ना कदे जवान, ना कदे बुढ़ा, ना कदे कोई रोग, ना कदे जन्म ते ना कदे मौत, ओदा रूप सदा बनिया रहिंदा है। वो इन्ना फब्बदा है, ओदी आबा ओदी फब्बत हमेशा सदीव काल है, क्योंकि पंज तत्तां तो निर्लेप है। तां गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते परमात्मा तेनों मत्था टेकदा। सतगुरु कह रहा निर्जुर स्वरूप है कि सुंदर स्वरूप है कि भूपन के भूप है कि दाता महादान हो। ये ओदे विशेषण ने उस परमात्मा दे, जिहदी करके सतगुरु वार वार नमस्कारा कर रहे हैं। अपूत है वाहिगुरु तेनों प्रणाम, नमस्तंग अजूपे। अजूपे का अर्थ एक विद्वाना ने किया बंधना तो रहत, जिहदा शरीर कोई नहीं उन्होंने बंधन भी कोई नहीं, किसी तरह का ना शरीर करके, ना मन करके, ना बुद्ध करके, ना मत करके, ना तन करके, किसी गल करके कोई उन्होंने बंधन नहीं है। तो महाराज कहते आ जेड़ा जूप का अर्थ अजूपे, जूप का अर्थ जेड़ा जिस किले नाल बन के पशुओं की बली दिंदे आ उन्होंने जूप कहा जाता है। ओदा सिर वढ़ के पशु का, बड़े लोग कदे थे असमेध जग, कदे गेंडा जग, बड़े तरह तरह के जग इस देश में होंदे आए तो हो रहे आ। लोग वड्डे वड्डे मसलियां दे इत्थे मनुखां दियां बलियां देण दे जिहड़े जग भी कीते गए। उहदे पिछे क्योंकि कुर्बानी बली जिहड़ी आ ना, एक तां जिहदी बली देनी आ उहदी मर्जी नहीं हुंदी कि मैं मेरी बली दिओ, दूसरा बली देण तो बाद एक कोई ना कोई इच्छा हुंदी है। शहादत इसे करके सब तो उच्ची है, शहादत देण वाला स्वै इच्छा नाल शहादत दिंदा है, और शहादत देण तो बाद कोई इच्छा नहीं रखदा रब अगे कि मैनूं आह दात दे दिओ मैं तां शहादत देनी है। कुर्बानी बली देण वाले दी कोई ना कोई इच्छा हुंदी है। परमात्मा तू अजूबे है, तैनूं पाउण वास्ते, तेरा दर्शन लैण वास्ते, देखण वास्ते, तेरे नाल सांझ बनाउण वास्ते किसे नूं किसे भी पशु की बली देण दी लोड़ नहीं। तू बलियां देण वालियां तो मिलदा ही नहीं। इहो जिहा कोई जिहड़ा निषेध है, जिहड़ा इहो जिहा कर्म कांड करन दे नाल तू नहीं मिलदा। जे कोई कल सोचे पशुओं की बली दे दो रब मिलेगा, नहीं मिलना, पाप कर रहा हो। और महाराज ने बाणी तय कह दिता, मांस खाण गल वढ़ के हालत नाड़ा कवण वसे, उन्हां दा हाल की होएगा। जेड़े भाई पशुओं का जानवरों का गल वढ़ के मांस खाते उन्हां दा कल की बनेगा, जरा सोच लैण। ते परमात्मा इवें नहीं, जो सब मह एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। सतगुरु कहते जे तू सारियां विच मनदा भी रब है, फिर मुर्गी विच भी तो उहनूं क्यों मार रहा है, बकरियां नूं क्यों मार रहे हैं, और जानवर जिन्हां दा मांस करना इन्हां नूं क्यों मार रहे हैं। जे तैनूं पता सारियां विच रब है, दा मतलब तू रब नूं मार रहा है, उहदा कतल कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर नूं खुश करन वास्ते किसी पशु की बली की लोड़ नहीं। ते ओ परमात्मा तां प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम दे नाल परमात्मा ने मिलना। नमस्तंग निरकर्मे, तैनूं पाउण वास्ते किसी कर्म की लोड़ भी नहीं। सतगुरु कह रहे आ कि इत्थे लोग कर्म कांड बहुत करते हैं, कोई यज्ञ कर रहा, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा, कोई पुण्य दान कर रहा है, बड़े तरह के इहो जे कर्म कांड जिहड़े लोग धर्म समझ के कर रहे हैं, पिछे किते ना किते भावना। वैसे तो ये कर्म कांड कोई लोड़ वास्ते, स्वार्थ वास्ते है। चलो कई लोग इस तो थोड़ा जिहा अगे लंघे, पर कर्म वो यही कर रहे हैं, वो सोच रहे रब मिल जाए, तीर्थां ते जाके यज्ञ करन नाल पुण्य दान नाल रब मिल जाए। सतगुरु पातशाह कहते रब मिलना, गुरमत कह रही है नीयत शुद्ध दे नाल। शेखा नीयत रास कर। गुरु नानक साहब ने कहा सी ना शेख नूं, भाई रब कल्ले कलमे पढ़न नाल, शब्द पढ़न नाल नहीं मिलता। शेखा नीयत रास कर, अपनी नीयत नूं साफ कर। साफ नीयत वालियां नूं रब मिलदा है, साफ दिल वालियां नूं परमात्मा मिलदा है। बड़ा कठिन औखा है,
कई सारी जिंदगी मत्थे भी टेकदे आ, बाणी भी पढ़दे आ, धर्म भी कमाउंदे आ, धर्म दे कर्म भी करदे आ, पर जे इन्ना कुछ करदे आ नीयत रास नहीं, नीयत साफ नहीं, नीयत विच खोट है, नीयत विच बेईमानी है, नीयत विच विकार हले भी वासनावां नाल जिहड़ी ओह नीयत भरी पई है, फिर हो सकदा तेरा ये समा व्यर्थ भी जा सकदा, कर्म कांड व्यर्थ जा सकदे आ जे तेरी नीयत साफ ही नहीं। एक कर्म करने ही तां ने कि नीयत साफ हो जाए। नीयत साफ होवे तो रब आप मिलदा है। तो फरीद साहब ने एक श्लोक अपनी बाणी दे विच कहा जिहदे सामने बिल्कुल धन गुरु अमरदास पातशाह बोल रहे आ, पाड़ पटोला तज करी कंबलड़ी पहरिओ, कहंदे मेरा मन करदा मैं वधिया पोशाक नूं पाड़ के इहदियां लीरां बना दियां, गुदड़ अपने तन ते पह लवां, जिन्नी वेसी शौह मिले, जेड़ा लिबास धारण करके रब मिलदा मैं ओ लिबास धारण करां, मैं ओ भेख धारण करां जिन्हां नाल परमात्मा मिलदा, सही वेश करिओ। लेकिन गुरु अमरदास पातशाह कहंदे नहीं नहीं, काहे पटोला पाड़ती, वधिया कपड़े क्यों पाड़दा भाई, लीरां पाउण दी की लोड़ा, रेशम तन ते पा, वधिया खुराक खा, सोहणे घर विच रह, काहे पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरिओ, नानक घर ही बैठियां शौह मिलै। जे नीयत रास करे घर बैठिया रब मिलदा, जे नीयत साफ होवे, नीयत रास होवे, परमात्मा इवें मिलदा। नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे, परमात्मा किसे कर्म कांडा नाल नहीं बल्कि साफ नीयत नाल उहदे दर्शन हुंदे आ। इस तो अगले बचन आपां कल रोज विचारांगे। एक एक बचन बड़ा भावपूरत है, एक एक बचन उस परमात्मा दे घर दा सुनेहा और उहनूं नमस्कार करन वास्ते सानूं प्रेर रिहा है। ਉਹ अकाल पुरख ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। और मैं भी बेनती करा, सब तो सौखा काम रब नूं मिलना है, जिन्हों औखा करके पेश किया गया। नानक घर बैठिया, शाह गुरु अमरदास कह रहे हैं, घर बैठिया उस परमात्मा नूं मिल, पर मिलना चाहना तो नीयत रास करे, नीयत साफ कर। नीयत च खोट, नीयत च विकार, नीयत च वासनावां, नीयत च क्रोध, नीयत च साड़ा ईरखा कुछ नहीं होना चाहिए। नीयत इहो इन्नी पाक पवित्र होवे जिवें बाबा फरीद साहब दी है। भगत ਧਰੂ ਤੇ प्रहलाद दी, उन्हां दियां भगत ਰੂ ਦੀ उदाहरण दे के मारे कह रहा, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ਧਰੂ प्रहलाद जपिओ हर जैसे, जिवें उन्होंने जपिया भाई उवें जप, क्योंकि उन्होंने साफ नीयत नाल जपिया। जिहड़ा साफ नीयत नाल जपेगा वो परमात्मा दा आनंद, मिलाप दा आनंद माणेगा। जे कोई नीयत खोट रख के नीयत विच कोई भी धर्म का काम करी जाए, वो शरीर की वर्जिश कर रहा होएगा, वो कोई योग साधना तो कर रहा होएगा, पर इन्हां कर्म कांडां तो बाद जो सोचे रब मिलेगा, ये नहीं हो सकना। उहदे लई तां जिवें सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे आ, सानू ये सिख नूं, सिੱਖਿਆ नूं सुन के मन च वसाउणा पएगा और कमाउणा पएगा, तां ही ये जीवन लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दे सी भागी बन सकांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान तमाम भुलां चुकां दी खिमा देहो, सज्जण असीसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। आओ सारी संगत आनंद साहब दी बाणी विच रल मिल के आपो अपनी रसना पवित्र करिओ ते फिर अरदास बेनती विच जुड़ांगे। आनंद साहिब राम कली महला तीजा, आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद।